नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल यादव है। आज मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ ईएनएम इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। और आप देख पाएंगे कि कितने आउट पेशेंट के कितने ये स्पेशली आउट पेशेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आउट पेशेंट में कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उन्हें हम समझा पाएं, कैसे हम एक्सप्लेन कर पाएं, ताकि कोडर्स या हम लोग इंटरव्यू क्लियर कर पाएं। राइट, ये क्वेश्चंस जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए या नए जॉब सर्च करने के लिए या जो एग्जाम पर्पज से भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। Morning दोस्तों, my name is Kamal Yadav. Today we'll discuss about the minor procedure in outpatient and same day surgery. So लास्ट टाइम जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ईएनएम आउट पेशेंट के अंदर बहुत सारे सेम डे प्रोसीजर होते हैं जो माइनर्स होते हैं, कुछ लाइक मेजर भी होते हैं। तो माइनर और मेजर सेम डे प्रोसीजर्स के बारे में इस वीडियो में फुल्ली डिस्कस करेंगे। ये हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू सेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Thank you for watching and subscribing my channel. You are learning coding with Kamal Yadav. Thank you so much. Part 1, skin and wound biopsy and debridement groups. We are discussing about those procedure which coming into the outpatient session. Common ICD guidelines, examples and modifiers will discuss. Mohar surgery, right? Mohar surgery CPT code started from 17311 to 17315. Generally, which guideline, ICDs are going on? Skin cancer ICD code range. ICD code range is started from C 44.0 to C 44.9 and D04.0 to D 04.9, like that. So this kind of things are going on. Guidelines behind this CPT code: use only for malignant lesion with immediate pathology and layered excision. Example क्या है इसका? basal cell carcinoma, nose on nose removal by Mohers. मॉडिफायर एप्लीकेबल होगा तो LT RT और 59 मॉडिफायर वी कैन अप्लाई। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आता है? एक्सीजन ऑफ बिनाइन लीजन। कोड रेंज स्टार्टेड फ्रॉम 11.400 टू 11.446। डायग्नोसिस कोड विल टेकिंग फ्रॉम दैट डी सीरीज D22.9 to L72.0 D27 23.9 based on the size, location or benign pathology. So guidelines related to that, examples क्या होगा? removal of lipoma from the back. Modifier will be applicable if used, but you guys are focused whenever skin related procedure is performed, that time we are not using left and right or any modifier. So please take care of that. If procedure is a multiple, and that time procedure to procedure we can use 59 modifier, but left right modifier is not applicable for skin related procedures. Excision of malignant lesion. Excision of malignant lesion code range is starting from 11600 to 11600 to 11646. ICD code started from C43 to C44. Used for cancer excision without mohars. यूज होता है कब? कैंसर एक्सीजन के लिए विदाउट मोहर सर्जरी। स्क्वामस सेल एक्सीजन ऑन आर्म एग्जांपल्स है इसके, तो आप देख सकते हो। सिंपल रिपेयर कोड रेंज स्टार्टेड कहाँ से होता है? 120012 12021। एस सीरीज के कोड हो सकते हैं S01 S061 S91। सुपरफिशियल क्लोजर, नो लेयर क्लोजर रिपेयर्ड। suturing 2 cm hand cut. If multiple layers, simple or intermediate or complex with other location body part, that time we can use a 59 modifier for to showing the separate procedure perform. Intermediate repair code is started from 12031 to 12057. Code range ICD code is started from S01 to 808130. Layer closure of the deep tissues, face laceration with a muscle layer, face laceration with muscle layers एग्जांपल्स होते हैं आपके इंटरमीडिएट रिपेयर का। कॉम्प्लेक्स रिपेयर
131002 started 1316 T8130, ये आईसीडी के कुछ एग्जांपल है, रेंज है। S01 सीरीज के आईसीडी लगते हैं। रिक्वायर्स एक्सटेंसिव अंडरमाइनिंग और रिवीजन। इसका रिवीजन एग्जांपल्स हो सकते हैं विथ फ्लैप। इसका रिवीजन विथ फ्लैप हो रहा है तो उस केस में हम कम्प्लेक्स रिपेयर मानते हैं। कम्प्लेक्स रिपेयर की अलग से डेफिनेशन भी होती है, तो we'll discuss that। इन केस में हम 59 मॉडिफायर एप्लीकेबल होता है। डेब्राइडमेंट, डेब्राइडमेंट क्या होता है विल डिस्कस। 11042 से स्टार्ट होता है कोड 11047। एल से 97 सीरीज के आईसीडी जाता है, ये 11.621 जाता है। और T80 1.4 सीरीज के कोड होते हैं। कोड बाय द डेप्थ एंड सरफेस एरिया। कोड कैसे डिपेंड करता है, डेप्थ कितना है, सरफेस एरिया कितना है। डायपेटिक फुट अल्सर डेब्राइडमेंट, इस तरह के डेब्राइडमेंट कोड होते हैं। इंसिजनल बायोप्सी स्किन, इंसिजनल बायोप्सी स्किन के बारे में बात करें, कोड रेंज स्टार्टेड होता है हमारा 111062 टू 11107। डायग्नोसिस कोड रेंज क्या हो सकते हैं, D48.5 टू DL98.9। टिश्यू रिमूवल फॉर द डायग्नोसिस only, tissue removed for diagnosis only, like पंच बायोप्सी ऑफ लीजन, लाइक पंच बायोप्सी ऑफ लीजन है। इस केस में हम 59 मॉडिफायर यूज करते हैं। मल्टीपल प्रोसीजर परफॉर्म ऑन द मल्टीपल ऑर्गन्स, दैट सिनेरियो। पैरासिंथेसिस, पैरासिंथेसिस के केसेस में हमारे पास कोड रेंज जो दिया हुआ है 49082 49083। डायग्नोसिस जनरली जो यूज होती हैं R18 K70.31, ये सारे हो सकते हैं। अब 49082 डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। 49083 थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज होता है। एसाइटिस फ्लूइड ड्रेनेज के केसेस में होता है। और इफ प्रोफेशनल कंपोनेंट होगा तो 26 मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। स्किन ग्राफ्ट स्प्लिट थिकनेस के कोड रेंज हमारे पास है 15100 से स्टार्ट होता है 15102। T30 सीरीज के कोड और L98 सीरीज के कोड यूज होता है। डोनर स्किन थिन लेयर होता है, बर्न ग्राफ्टिंग के केस में यूज होता है। लेफ्ट राइट अगर अप्लीकेबल है तो हम लगा सकते हैं। स्किन ग्राफ्ट फुल थिकनेस के कोड रेंज होते हैं 15200 15201। T30 इंटायर स्किन थिकनेस नजल रिकंस्ट्रक्शन के केसेस में होता है तो ये लगा सकते हैं। फ्लैप क्लोजर के कोड रेंज हमारे पास है 14000 से लेके 14302। Z40 8.81 और C44 सीरीज के आईसीडी कोड जनरली यूज होता है। टिश्यू रिमूवल विद द फेशियल रोटेशनल टिश्यू रिमूवल विद अ ब्लड सप्लाई ट्रैक, ये गाइडलाइंस बोलता है। और फेशियल रोटेशन फ्लैप, ये एग्जांपल है। इस केस में हम 59 मॉडिफायर लगा सकते हैं। लेट्स डिस्कस मुहर्स सर्जरी फॉर स्किन कैंसर। कोड सीपीटी कोड रेंज क्या होता है 17311। एडॉन कोड है 17312 और एडॉन कोड है 17313 सो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, साइज, लोकेशन, स्टेज, टिश्यू लेवल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनिशियल ट्यूमर रिमूवल फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, एक्सीजन ऑफ द विजिबल कैंसर। सीपीटी कोड क्या यूज होगा 17311। टिश्यू एनालिसिस और टिश्यू एग्जामिन इन लैब, सो ये भी प्रोसेस साथ के साथ होता है। थर्ड है हमारा एडिशनल स्टेज फर्दर लेयर रिमूवल, फर्दर जो लेयर होगा उसको रिमूव करेंगे। क्लीन मार्जिन अचीव्ड नो कैंसर सेल रिमेनिंग, सो सारे क्लीन कर देते हैं। उस केस में सीपीटी कोड क्या जाता है ये वाले सिनेरियो में 17312 और 17313। यहाँ पे वुंड रिपेयर्स कोड 12051 और 12057, ये कोड अप्लीकेबल होगा। रिपोर्ट्स के नोट्स चाहिए। थंब रूल में क्या आता है नोट्स अगर हम चेक करें तो ट्यूमर साइज, नंबर्स ऑफ स्टेज and closure method, so we are using this step to coding the Mohar surgery. I hope this procedure you will understood। एक्सीजन ऑफ बिनाइन लीजन, एक्सीजन ऑफ बिनाइन लीजन में क्या होता है सर्वियोस, सर्वियोस में क्या आएगा सिंपल सिस्ट,
सेरेब्रोइक केटोसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं बिनाइन लीजन का, एक्सीजन ऑफ बिनाइन लीजन का। सीपीटी कोड रेंज 1400 से स्टार्ट होता है, 1406 सिंपल के लिए, 11420 से लेके 11426 इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स के लिए यूज होता है। फिर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, एरिया क्लीन विथ एंटीसेप्टिक। सो आप ये इमेज में देख सकते हो कि कैसे क्लीन कर रहे हैं, एरिया क्लीनेड विथ द एंटीसेप्टिक। सेकेंड, मार्जिनल like margin margin markings, elliptical outlines around the lesion, like they are marking the layers, like which how much margin are there. So they decided elliptical outline around the lesion. So ये ऐसे इस मार्क करते हैं। लीजन एक्सीजन में आते हैं, रिमूवल ऑफ लीजन एम्ड एट क्लीन मार्जिन। लाइक रिमूवल ऑफ लीजन का क्या मीनिंग है यहाँ पे, कि रिमूवल ऑफ द लीजन एम्ड, क्या एम है कि क्लीन मार्जिन ये पूरा रिमूव करेंगे। सिंपल एक्सीजन सीपीटी कोड 11401। लाइक साइज क्या हो सकता है इसका, लाइक 11 to 20 पॉइंट सेंटीमीटर। सो ये इस तरह के आपको रेंज मिलेगा, साइज मिलेगा। इंटरमीडिएट रिपेयर और कम्प्लेक्स रिपेयर एड ऑन है, तो सीपीटी कोड क्या होगा, 12031 से लेके 12057 एज पर साइज हम कोड करेंगे। सो रिपोर्ट की गाइडलाइंस क्या बोलती है, लीजन साइज, लोकेशन, नंबर्स, क्लोजर, मेथड। लाइक ये सिंपल है, इंटरमीडिएट है और कम्प्लेक्स है। सिंपल रिपेयर इंक्लूड होता है, इंटरमीडिएट और कम्प्लेक्स रहेगा तो हम सेपरेटली कोड करेंगे। एक्सीजन ऑफ मैलिग्नेंट लीजन, एक्सीजन ऑफ मैलिग्नेंट लीजन ऊपर वाला बिनाइन था, तो इसमें क्या हो सकता है, अगर हम कोड रेंज बात करें, सिंपल 11600 से लेके 11606 तक जाता है सिंपल, और मार्जिनल होता है। तो देखते हैं इसमें कोड रेंज हमारे पास 11006 1100 से लेके 11606 सिंपल, 11620 से लेके 11626 ये हमारा इंटरमीडिएट और कम्प्लेक्स लाइक एक्सीजन का कोड होता है। सेम प्रोसेस एप्लीकेबल होता है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होता है, एंड area cleaned with the antiseptic, area cleaned with the antiseptic, margin marking, wide ellipticals outline around the lesions, wide like ellipticals outline around the lesion, they marking like that. Lesion excision, excisions removed, removal of the lesion with the wide margins, simple excision, simple excision के एग्जाम्पल हैं। सीपीटी कोड क्या होगा, 11601। साइज यहाँ पे मेंशन है। इंटरमीडिएट रिपेयर और कम्प्लेक्स रिपेयर एडेड, सीपीटी कोड 120312057। सिंपल एक्सीजन सीपीटी कोड 11061। साइज यहाँ पे मेंशन हुआ है। वुंड केयर क्लोजर अगर हो रहा है, लेयर सुचर क्लोजर, सो उस केस में हम चेक करेंगे कि मेथड क्या है। लाइक रिपोर्ट लीजन साइज, लोकेशन, मार्जिन एंड क्लोजर मेथड, उसके हिसाब से हम कोड करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द लेसरेशन रिपेयर। लेसन रिपेयर कैसे होता है। सिंपल रिपेयर की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है, लेंथ चाहिए, लोकेशन चाहिए, मेथड चाहिए। सीपीटी कोड क्या यूज होता है, 12001 से लेके 12007। इपीडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन होता है। 12008 एक्सटेंसिव के लिए होता है। वुंड प्रिपरेशन होता है, वुंड क्लीन और डेब्रिस रिमूव करता है। यहाँ पे वुंड क्लीन किया और डेब्रिस रिमूव किया। लोकल एनेस्थेसिया, इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेसिया अप्लाई करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। थर्ड स्टेप्स में क्या आता है हमारा, वुंड क्लोज्ड इन अ सिंगल लेयर, अगर वो सिंगल लेयर्स में वुंड क्लोज हो रहा है। थर्ड फोर्थ हमारा होता है फिनिश द रिपेयर, सिंपल वन लेयर क्लोजर, इपिडर्मिस एंड डर्मिस। इस केस में क्या होगा, इपिडर्मिस सिंपल वन लेयर क्लोज हुआ है, इपिडर्मिस और डर्मिस, तो यहाँ पे कोडिंग ऐसे जाएगा। रिपोर्ट के अंदर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लेसरेशन, लोकेशन, सूचर मटेरियल यूज एंड स्ट्रेचेज यूज, जो भी चीजें यूज होंगी उनको हम चेक करेंगे। रिपेयर लेंथ अगर लेस देन 2.5 है तो कोड आता है 12001
और लाइक 12002 जाता है 2.6 से लेके 7.5 सेंटीमीटर, 12004 जाता है 7.6 से लेके 12.5 तक। रिम्बर्स लेंथ हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। लेट्स चेक दैट इंटरमीडिएट पेयर कोड रेंज स्टार्टेड फ्रॉम 12031 से लेके 12057। रिपेयर दैट इंक्लूड द लेयर्ड क्लोजर, इट मीन दैट टू और मोर लेयर्स क्लोज हुआ है ऑफ द डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू क्या हो सकते हैं आप देखोगे, एब्जॉर्बेबल सूचर्स प्लेस इन द डीपर, एग्जांपल है सबक्यूटेनियस टिश्यूज। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डीप टिश्यू क्लोज लेयर ऑफ द डीप टिश्यू, लाइक पहला जो लेयर होता है स्किन का एपिडर्मिस, डर्मिस लेयर, देन आपका सबक्यूटेनियस लेयर, यहाँ पे नोटिफाई किया गया है सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं, और फेशियल है, मसल है। तो अगर यहाँ रिपेयर अगर सबक्यूटेनियस लेवल तक जा रहा है उस केस में डीप सूचर यूज किया है, क्लोज लेयर ऑफ द डीपर टिश्यू। Superficial suture, non-absorbable sutures placed in the upper layer, example dermis और epidermis। सेकेंड है यहाँ पे सिंपल वर्सेस इंटरमीडिएट, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि सिंपल है कि आपका इंटरमीडिएट। सिंपल रिपेयर सिंगल लेयर क्लोजर होगा, सीपीटी कोड 12001 से लेके 12021 तक जाता है। इंटरमीडिएट रिपेयर में लेयर्ड क्लोजर होंगे, मतलब मोर देन वन लेयर क्लोजर होगा इसमें। सीपीटी रेंज हमारा 12031 से लेके 12057 तक जाता है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, लोकेशन, साइज, लेयर क्लोजर, टाइप क्या होता है, डीप सूचर होगा, रिपेयर लेंथ, इसके बिहाफ पे हम कोड सेलेक्ट करते हैं। सुपरफिशियल सूचर के ये आप पिक्चर्स में क्लियर देख पा रहे होंगे कि कैसे हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा, सेम, लोकेशन, साइज, लेयर्ड क्लोजर, एग्जांपल डीप सूचर, रिपेयर ऑफ लेंथ। तो आप इस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। कम्प्लेक्स रिपेयर की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, लेंथ, लोकेशन, लेयर्स और मेथड, लाइक सीपीटी कोड 13100 से लेके 13153 तक ये कोड रेंज आता है। डीप लेयर क्लोजर होगा, इसमें प्लेसमेंट ऑफ डीप सूचर जाएगा, सबक्यूटेनियस सूचर क्लोजर होगा। अंडरमाइनिंग ऑफन परफॉर्म, अंडरमाइनिंग इसमें परफॉर्म किया जाएगा। सुपरफिशियल लेयर क्लोजर, स्किन suture over deep suture, typical for the cutaneous flap और undermining, cutaneous flap यूज करेंगे या undermining करेंगे। रिपोर्ट इसको कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, तो wound of length, location, layer closed and closure method, तो ये हम आइडेंटिफाई करके कोड करेंगे। तो इस तरह से आप चेक देख पाओगे कि सिंपल, अगर मैं बात करूँ कम्प्लेक्स इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है, आपको शायद होप ये क्लियर होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट द डिब्राइडमेंट। डिब्राइडमेंट क्या होता है, डिब्राइडमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है। एनाटॉमी, सरफेस एरिया होगा इसके अंदर, लाइक एनाटॉमी देखेंगे, डिब्राइडमेंट सरफेस एरिया चेक करेंगे। सीपीटी कोड हमारा क्या है 11042 से लेके 11047। इसमें पहला स्टेप में क्या होता है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस होता है। सेकेंड में सबक्यूटेनियस लेवल तक आपका देखने को मिलेगा। नॉन विजिबल एपिडर्मिस, डर्मिस रिमूव किया इन्होंने। कोड सीपीटी कोड क्या है 11042, 20 स्क्वायर cm और लेस होगा तो ये जाएगा। प्लस एड ऑन कोड होता है 11045, ईच एडिशनल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ये लाइक आपका एपिडर्मिस और डर्मिस लेवल पे है। नॉन विजिबल सबक्यूटेनियस टिश्यू रिमूव्ड हो रहा है, उस केस में सीपीटी कोड होता है 11043 से लेके 20 और लेस के लिए है। प्लस एड ऑन कोड है 11046, ईच एडिशनल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। मसल एंड फेसिया लेवल पे अगर डेब्राइडमेंट हो रहा है तो उस केस में हमारे पास नॉन विजिबल मसल फेसिया या फेसिया डेब्राइडमेंट हो रहा है तो सीपीटी कोड 11047 से 220 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेस के कोड हैं। सीपीटी 11047, ईच एडिशनल 20 सेंटीमीटर के लिए कोड है। अगर बोन लेवल तक डेब्राइडमेंट हो रहा है, नॉन विजिबल बोन डेब्राइडमेंट हो रहा है, तो उस केस में हम ये कोड करेंगे। रिपोर्ट एनाटॉमी इन्वॉल्व्ड इन्वॉल्व टिश्यू डेप्थ, टोटल सरफेस एरिया और इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड, लाइक
जो डेवलपमेंट है उसका एपिडर्मिस लेवल पे हुआ है, डर्मिस में है, सबक्यूटेनियस में है, मसल या फेसिया है या बोन है, उस मेथड के हिसाब से उस हम कोड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, अगर आप स्लाइड में देखा होगा कि पैरेंथेसिस क्या होता है, तो लेट्स सी पैरेंथेसिस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज अ पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस इज आल्सो नोन एज द ascitic tab or abdominal tappings is a procedure that is mainly performed to the drain the excess fluid from the abdominal cavity for डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक पर्पस। सो आप अगर देखोगे कि यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसको ड्रेनेज करने की मेथड को पैरासेंथेसिस बोलते हैं। लेट्स सी नॉर्मल नॉर्मल एब्डोमेन कैसे दिखेगा और एक्सेसिव फ्लूइड इन अ पेरिटोनियल कैविटी होगी तो कैसे दिखेगी। टाइप ऑफ द पैरासेंथेसिस में देखोगे, और एसाइटिक टाइप के अंदर क्या होता है प्रोसीजर आप देख पाओगे इसमें, पैरासेंथेसिस और एसाइटिक फ्लूइड टैपिंग प्रोसीजर आर मेनली टू टाइप्स का होता है, डायग्नोस्टिक पैरासेंथेसिस और डायग्नोस्टिक एसाइटिक टैप बोल सकते हैं। थेरेपेटिक पैरासेंथेसिस होता है, सेंथेसिस होता है, और थेरेपेटिक एसाइटिक टैप होता है। तो इस केस में आप देख पाओगे एसाइटिस साइटिस क्या है, एब्डोमेन का है, नीडल है और ड्रेनेज है। आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन का लोकेशन यहाँ बताया गया है, ये इसमें जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है नीडल इन्होंने इंसर्ट किया हुआ है और ड्रेन हो रहा है इस ट्यूब के थ्रू, और यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, कलेक्शन कंटेनर है। तो इस मेथड को एब्डोमिनल पैरासेंथेसिस बोलते हैं। सेकेंड थर्ड प्रोसीजर था हमारा ग्राफ्टिंग का था। तो स्किन के लेयर आप 3 लेयर होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस होता है। तो अगर यहाँ देखो आप इस रेंज के हिसाब से देखो कि इस एरिया तक हो रहा है तो स्प्लिट थिकनेस बोलते हैं, और यहाँ पूरा एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस इन्वॉल्वमेंट होता है तो फुल थिकनेस होता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे टाइप ऑफ द ग्राफ्ट में आता है पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट, फुल थिकनेस ग्राफ। एपिडर्मिस, डर्मिस, जैसे यहाँ पे स्प्लिट थिकनेस और फुल थिकनेस आपने देखा हुआ था। स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट हार्वेस्ट द एपिडर्मिस एंड पार्ट ऑफ द डर्मिस रदर देन द बोथ लेयर। तो इसमें से मतलब एपिडर्मिस और थोड़ा पार्ट ऑफ द डर्मिस करेगा, ना कि दोनों लेयर करेगा। एग्जाम्पल यहाँ जैसे दिखाया गया है, स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्ट है, इंजरी एरिया, ये इंजरी एरिया है, और यहाँ पे डोनर साइड से इन्होंने सेम साइज का लिया और यहाँ कवर कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ्टिंग मेथड होता है। यहाँ पे देखो थीन है, अगर इंटरमीडिएट है, थिक है और फुल थिकनेस है। तो इस तरह से है कि ये मतलब थोड़ा ग्राफ्ट लिया, इंटरमीडिएट लेवल पे लिया, थिक लेवल पे लिया, फुल थिकनेस में लिया। अगर पहला है एपिडर्मिस लिया तो थीन हो जाता है, डर्मिस थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है तो इंटरमीडिएट है, सबक्यूटेनियस लेवल तक आ रहा है तो उस केस में थिक और फैट और फेसिया ले रहे हैं, सबक्यूटेनियस और एपिडर्मिस, डर्मिस ले रहा है तो फुल थिकनेस हो जाता है। ये फेसिया लेयर आप स्किन का देख सकते हो। जैसे यहाँ ऑल ऑल ज़्यादा क्लियर है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, इसको बोलेंगे एपिडर्मल ग्राफ्ट, इजी बोलते हैं। स्प्लिट डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों होता है तो इस केस में स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट SSG बोलते हैं। और इस केस में डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस के कुछ पार्ट है, बोथ लेयर है, उस केस में आप फुल थिकनेस ग्राफ्ट FTSG बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आई होप सो कि स्किन रिलेटेड जो भी माइनर प्रोसीजर हैं आउट पेशेंट के अंदर आते हैं आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछो कमेंट्स के अंदर, मैं उस पर क्लैरिफाई करूंगा। थैंक यू सो मच।